Assalamu alaikum dear students, this is your Asif sir from Department of Physics at SKIE classes. So Alhamdulillah, you must be very much thankful to the team of SKIE classes, especially respected Saddam sir and respected Hamid sir, who made this program very much successful. So मैं believe कर रहा हूं कि इस program से आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंच रहा होगा. And Alhamdulillah, in the last previous lecture, I discussed about the fluid dynamics. We discussed the terminal velocity. We discussed about the Stokes law. We discussed about the types of flow. तो बेटा टाइम कॉन्स्ट्रेंट की वजह से हमें 2 या 3 क्वेश्चंस डिस्कस हो पाते, तो इंशाल्लाह आज भी 2 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. तो आज जो क्वेश्चन मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस यहां पे इंपॉर्टेंट हैं और आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज स्टेट एंड प्रूव Bernoulli's theorem and give it its application. I want to tell you that this question is not only important from board point of view, but it is also very much important from entrance point of view. Okay, then we will also discuss surface tension and it is molecular theory. So let us move to the Bernoulli's theorem. So, beta, please listen to me. Did you remember that I told you that a fluid, a moving fluid, may have 3 types of energies? बेटा एक एनर्जी, मान लो आपके पास एक पाइप है, ठीक है, and inside this pipe the fluid is moving from A to B, and this point is at height h1 from the reference line, and this point lies at height h2 from the reference line. Now बेटा ये जो फ्लूइड है, तो इस फ्लूइड में, मूविंग फ्लूइड में 3 एनर्जीज होती हैं बेटा. एक एनर्जी जो है, दैट इज बिकॉज ऑफ इट इज हाइट, बेटा उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. ओके, या आप उसको GPE कह सकते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. डू यू नो दैट वेन एवर द बॉडी इज रेज्ड टू सर्टेन हाइट, देन इट पोजेसेस एन एनर्जी कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, विच इज इक्वल टू mgh. ओके, सो एक फ्लूइड में एक एनर्जी होती है ड्यू टू इट इज हाइट, ड्यू टू इट इज पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ सरफेस, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो बेटा इस फ्लूइड की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वी कैन राइट इट एज mgh. ओके, बट बेटा यूजुअली क्या होता है, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा जाए कि हम जो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं पूरे मास के लिए, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट. ये बेटा बहुत डिफिकल्ट है कि आप एंटायर मास ऑफ फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे. तो बेटर क्या रहता है बेटा, हम क्या करते हैं, हम इस फ्लूइड मैकेनिक्स में जब भी बात करते हैं, हम यूनिट मास की बात करते हैं. यानी कि हम देखते हैं कि इस फ्लूइड में के यूनिट मास की, यानी कि 1 kg मास की कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी. सो यूजुअली इन फ्लूइड मैकेनिक्स वी डोंट मेजर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एंटायर मास, but we measure the potential energy per unit mass. So I can write it like this: gravitational potential energy per unit mass, it is equal to mgh divided by m. तो बेटा याद रखोगे, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है पर यूनिट मास, बेटा वो होती है बराबर gh. क्लियर? देन एक और तरीका है बेटा इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने का. वो ये है बेटा, वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम। यस, हम देख सकते हैं बेटा यूनिट वॉल्यूम में कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। वी कैन राइट इट एज mgh divided by v. So mass by volume, you know it is density. So these are the three formulas for gravitational potential energy. For entire mass it is mgh, for unit mass it is gh, for unit volume it is rho gh. So this is about the gravitational potential energy of a fluid at a particular point. Now move to the second one, that is kinetic energy. What is kinetic energy? Yes, you know it is right from the 7th class you read about the kinetic energy, so I don't need to discuss it. Basically, whenever the fluid or an object begins to move, it has the energy called kinetic energy. So energy possessed by a fluid by virtue of its motion is called kinetic energy. And beta ये kinetic energy किसके बराबर होती है? शाबाश, half of mv square. But this is the kinetic energy of entire mass. But if you want to know, I told you that it is very much difficult to find out the kinetic energy of entire mass. अरे बेटा पूरे मास की kinetic energy निकालना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, हम यूनिट मास की kinetic energy निकाल सकते हैं. So what will be the kinetic energy or kinetic energy per unit mass? Half of m v square divided by m. Okay, this m and m will cancel out. It is equal to half of v square. Okay, so this is the kinetic energy per unit mass. Then in terms of unit volume, kinetic energy per unit volume, बेटा वो किसके बराबर आएगा? हाफ ऑफ m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई v. क्या ये v और ये v कैंसल होगा? नहीं बेटा, कभी एक मिसकॉन्सेप्शन होता है. ये क्यों नहीं कैंसल होगा? बिकॉज दिस v रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम एंड दिस v रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी. सो आई कैन डू वन थिंग, दिस मास बाय वॉल्यूम, यू नो इट इज डेंसिटी. सो किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is equal to half of rho v square. Yes. Move to the third type of energy. Kinetic potential हो गई, kinetic हो गई. अब बेटा pressure energy पड़ेगी. बेटा सिंपल आप याद रखोगे, यहां पे इसको इलैबोरेशन करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं इसकी डेराइवेशन भी दिखा सकता हूं, बट दैट इज नॉट इन योर, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एज फार एज द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न. बट व्हाट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, तो वो ये है बेटा, याद रखोगे, सिंपल मैं बताऊंगा. अगर आपके पास एक फ्लूइड है, इट इज एट रेस्ट, यू नो, अगर बेटा मैं इसको फोर्स डाल रहा हूं नॉर्मली, या मैंने एक पिस्टन लिया और उससे मैं इसको फोर्स डाल रहा हूं नॉर्मली, तो क्या होगा? These fluid molecules will exert the force normal to its surface. आपको पता है, आप इस कमरे में पानी रखो तो हर एक मॉलिक्यूल इस सरफेस को नॉर्मली फोर्स डालता है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट. जब भी फ्लूइड रेस्ट पे होता है, दैट ऑलवेज exerts the force normal to the surface, and that force per unit area is called hydrostatic pressure. Is that clear? तो बता बेटा, अगर मैं एक फ्लूइड को कंप्रेस करना चाहता हूं तो मुझे उस प्रेशर के, सो दिस इज बेसिकली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट रेस्ट. नाउ जब भी आप इस पिस्टन की वजह से इस फ्लूइड को कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, तो बेटा वो मॉलिक्यूल जो है फ्लूइड के, वो वापस फोर्स डालेगी. और आप जब इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के खिलाफ वर्क कर रहे हो, वही वर्क बेटा इस फ्लूइड में स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड प्रेशर एनर्जी. सो प्रेशर एनर्जी भी बेटा एक ऐसी एनर्जी है, ये एक पोटेंशियल एनर्जी ही है. ये बेका एनर्जी किया गुबरा, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये फ्लूइड स्टोरी करा या एनर्जी, लेकिन किस वजह से? बाय वर्च्यू ऑफ इट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर.
यानी कि फ्लूइड के प्रेशर की वजह से जो ये फ्लूइड एनर्जी स्टोर करेगा, वी कॉल दैट एज प्रेशर एनर्जी. एंड रिमेंबर, दिस प्रेशर एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड एज, लेट वी राइट इट एज PRE. सो प्रेशर एनर्जी की फॉर्मूला है, it is the product of pressure and volume. We can also derive it, but there is no need here. Derive करने में आपको पिस्टन लेना है, वो इसको कंप्रेस करेगा, FDX, F लिखेंगे PA, ADX होता है DV. तो खैर, लेकिन वहां नहीं जाएंगे. Let us come to the point. So pressure energy is the product of pressure and volume. So जब भी आप एक पूरे फ्लूइड में प्रेशर एनर्जी देखना चाहते हो, किसी भी पॉइंट पे, you will check the pressure, you will check the volume. That will give the pressure energy. लेकिन चलो बताओ बेटा, अगर आप प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास निकालना चाहोगे तो बेटा क्या आएगा? PV डिवाइडेड बाय M. ओके, सो P आई कैन राइट इट लाइक दिस, डिवाइड बाय M बाई V बेटा, और M बाई V होती है डेंसिटी. सो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास बराबर होता है प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी. क्लियर? ओके, देन वन मोर, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकालना चाहोगे बेटा, कैसे निकलेगा? पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकलेगा? PV divided by V. This V and this V will cancel out, so it will be directly equal to the hydrostatic pressure. So यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड में कितनी प्रेशर एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू इट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. सो अगर आप किसी भी पॉइंट पे फ्लूइड में देखना चाहते हो कि इसके यूनिट वॉल्यूम की कितनी प्रेशर एनर्जी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस पॉइंट का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकालना है. दैट विल गिव द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. मूव टू द बर्नौलीज थ्योरम नाउ. अब बेटा बर्नौलीज थ्योरम आपको समझ आ जाएगी. बेटा बर्नौलीज थ्योरम बहुत ज्यादा एनालॉगस है टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता था? जब भी एक सिस्टम पे खाली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करते हैं तो उस सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो सेम इज द केस हियर. बेटा आप अगर एक पाइप ले रहे हो ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया एट इनलेट एंड आउटलेट, दिस इज A1 A2. This point lies at height H1. This point lies at height H2 from the reference line. This has got pressure P1, volume V1. This point has got pressure P2, volume V2. This inlet has the velocity V1. This outlet has got the velocity V2. Then this theorem states that कि बेटा अगर इस फ्लूइड में, सॉरी अगर इस पाइप में जो फ्लूइड मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, अगर बेटा वो आइडियल फ्लूइड है. कौन सा फ्लूइड है? आइडियल. यू नो आइडियल फ्लूइड, नॉन डिस्कस, इनकंप्रेसिबल. और बेटा फ्लो जो हो रहा है, मान लो वो फ्लो है स्ट्रीम लाइन. कौन सा फ्लो है? स्ट्रीम लाइन. सो इनसाइड द पाइप यू हैव एन आइडियल फ्लूइड एंड द फ्लो इज स्ट्रीमलाइनेड. दो चीजें हैं, फ्लूइड आइडियल होना चाहिए और फ्लो स्ट्रीमलाइनेड होना चाहिए. तब बेटा जो इस फ्लूइड में तीन एनर्जीज का सम होगा, प्रेशर एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, बेटा वो सम हमेशा उस पाइप में कांस्टेंट रहेगा. सो कैन आई से दैट दिस थ्योरम, लेट मी राइट डाउन इट इज डेफिनेशन. This theorem states that for an ideal fluid and streamlined flow, the sum of, yes, प्रेशर एनर्जी, आप इसको ले सकते हो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम, आपकी मर्जी है. द सम ऑफ एनर्जी, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. यस,
always remain constant. Yes, ये सम बेटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कंडीशन ये जरूरी है, अगर बेटा फ्लूइड आइडियल नहीं होगा देन दिस सम विल नॉट रिमेन कांस्टेंट. व्हाई? बिकॉज जब आइडियल फ्लूइड नहीं है तो विस्कोसिटी है, जब विस्कोसिटी है तो एनर्जी लॉस हो जाएगी, जब एनर्जी लॉस हो जाएगी तो इन तीनों का सम कांस्टेंट नहीं रहेगा. सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, यस, P by rho plus kinetic energy per unit mass V square by 2, yes, plus potential energy per unit mass rho GH. बेटा ये जो सम होगा ये कांस्टेंट रहेगा. यस, या इन टर्म्स ऑफ यूनिट वॉल्यूम, ओके, कैसे लिख सकते हैं? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज P, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज हाफ ऑफ रो V स्क्वायर. बेटा अभी आपने देखा, प्लस व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास GH. तो बेटा ये जो सम होगा ये क्या रहेगा? कांस्टेंट. तो जितना इन तीन एनर्जीज का वैल्यू इनलेट पे होगा उतना ही वैल्यू आउटलेट पे होगा. यानी कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा डेफिनेटली घट रहा होगा. नाउ एक मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, दैट इज द प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. हमें इस बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ चाहिए. सो बेटा आपने रेस्पेक्टेड आबिद सर के पास वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है. क्या है वो? बेटा जब भी एक फोर्स, एक ऑब्जेक्ट या एक अप्लाइड फोर्स वर्क करता है वो उस सिस्टम में एनर्जी चेंजेस लाता है. जैसे आपने पढ़ा है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. लेकिन बेटा इतना ही नहीं है, अगर ब्रॉडली देखा जाए, ब्रॉडर सेंस में देखा जाए, this theorem states, according to work energy theorem, yes, work energy theorem कहता है जब भी आप या कोई सिस्टम, कोई अप्लाइड फोर्स वर्क कर रहा है वो उसमें चेंजेस लाता है एनर्जीज में. किस किस में लाएगा? दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन किनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन, यस, पोटेंशियल एनर्जी. यस, लेकिन बेटा यहां वर्क कौन कर रहा है? सी, व्हेन द फ्लूइड, ये वापस डायग्राम पे आ जाते हैं. नाउ सपोज द प्रेशर हियर इज P1, हियर इट इज P2. नाउ व्हेन द फ्लूइड इज गोइंग फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल, इट मींस बेसिकली ये जो प्रेशर है फ्लूइड का, इसी फ्लूइड प्रेशर की वजह से पानी पॉइंट ए से पॉइंट बी गया है. समझ आ रहा है? मतलब बेटा इस इनलेट पे प्रेशर एनर्जी कितनी होगी? P1 V1. यहां पे कितनी होगी? P2 V2. सो जो नेट वर्क डन हो रही है, देखो बेटा नेट वर्क डन जो कर रहा है ये अप्लाइड फोर्स, यानी कि प्रेशर जो वर्क कर रहा है, पानी लो लेवल से हाई लेवल खुद तो नहीं जाएगा. इट मीन्स ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे प्रेशर एनर्जीज की डिफरेंसेस हैं वही वर्क कर रहा है. सो वर्क डन कैन बी रिटन एज प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट ए दैट इज P1 V1 माइनस P2 V2 प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट बी. अरे बेटा वर्क डन कितनी हो रही है इनलेट पे? P1 V1. आउटलेट पे कितनी वर्क करनी है? P2 V2. तो नेट वर्क डन कितनी करनी है ताकि फ्लूइड ए से बी जाए? P1 V1 माइनस P2 V2. अच्छा बताओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल. वर्क एनर्जी थ्योरम में कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, नहीं कंफ्यूज होना है. वर्क इज नॉट ओनली इक्वल टू द चेंज इन किनेटिक एनर्जी, इट कैन बी रिटन एज इट इज द टोटल चेंज इन द एनर्जीज. जो भी आप सिस्टम में वर्क कर रहे हो वह बाकी एनर्जीज में चेंज ला सकता है. लेकिन यहां बाकी दो एनर्जीज कौन कौन सी हैं? किनेटिक और पोटेंशियल. अरे देखो कैसे बेटा, जब फ्लूइड लो लेवल से हाई लेवल जा रहा है तो देखो किनेटिक तो चेंज होगी और पोटेंशियल भी चेंज होगी क्योंकि हाइट चेंज हो रही है. So change in kinetic energy can be written as final kinetic energy, that is half of m v1 square. Okay, this m is the mass of the entire fluid, minus half of m v2 square plus, अरे what is change in gravitational potential energy? It is the final gravitational potential energy minus initial gravitational potential energy. I can write it as m
MgH2 माइनस MgH1। तो बेटा क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यूज को लेफ्ट साइड से रखेंगे, फाइनल वैल्यूज को राइट साइड से रखेंगे। क्या करेंगे बेटा, P1V1, यस, फिर और किसको इधर लाओगे, ओ सॉरी, यहां पे फाइनल का मतलब हुआ पहले V2 आएगा फिर V1 आएगा। ओके, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज मीनस फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस इनिशियल वैल्यू को यहां लाओ, ये पॉजिटिव बनेगा, हाफ ऑफ MV1²। और बेटा किसको यहां से लाओगे, MgH1 को भी इधर लाओ, प्लस MgH1 इक्वल्स टू, बेटा राइट साइड से फाइनल वैल्यूज को रखो। फाइनल मीन्स राइट साइड से ये P2V2 चला जाएगा, ये पॉजिटिव बनेगा, प्लस फाइनल वैल्यू काइनेटिक का है, दैट इज हाफ ऑफ MV2² प्लस MgH2। क्लियर। तो बेटा what is this P1V1? It is the pressure energy at the inlet. What is half of MV1²? It is the kinetic energy at the inlet. What is MgH1? It is the potential energy at the inlet. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इन तीन एनर्जीज का सम जो इनलेट पे है वही सम आउटलेट पे आ रहा है। तो बेटा इसी को कौन सी थ्योरम कहते हैं, बर्नौलीज थ्योरम। सो बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ 3 स्टेप्स में है। वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करनी है, वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। तो बेटा उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आप खुद भी बेटा इनको पढ़ सकते हो, लेकिन एक दो एप्लीकेशंस में बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा बेटा जो एयरफॉइल होती है, इट इज डिजाइनड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीमलाइन। वी कॉल दिस ब्रांच एज एरोडायनेमिक्स, डिजाइन ऑफ विंग्स, डिजाइन ऑफ एरोप्लेन, ताकि एयर फ्रिक्शन उस पर कम हो, इसको डिजाइन करने को एरोडायनेमिक्स कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि ऊपर वाला साइड जो होता है वो फिनिश्ड होता है, नीचे वाला थोड़ा कॉनकेव होता है, ऊपर वाला कॉन्वेक्स होता है। तो बेटा होता क्या है, ऊपर से जो वेलोसिटी होती है फ्लूइड की वो बहुत हाई होती है, नीचे से वेलोसिटी जो फ्लूइड की होती है वो बहुत कम होती है। सो इसका मतलब क्या हुआ, यू नो कि नीचे वाला और ऊपर वाला पॉइंट, इनमें उतनी हाई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं बर्नौलीज थ्योरम लगाना चाहता हूं तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, क्योंकि हाइट का कोई कंसिडरेशन यहां पे नहीं आएगा। ये जो ऐसे है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट लगभग सेम हाइट पे है। तो बताओ बेटा, अगर मैं यहां पे कह रहा हूं कि प्रेशर, जैसे मैं कह रहा हूं यहां पे वेलोसिटी कम है, ऊपर से स्ट्रीमलाइनिंग ज्यादा है, स्मूथ सरफेस है, तो वहां से स्पीड ज्यादा होगी। जब वहां से स्पीड ज्यादा होगी तो वहां से काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। लेकिन बेटा इन दो का सम कांस्टेंट रखने के लिए अगर ये चीज बढ़ रहा है तो बेटा ये चीज घटना चाहिए ना, ये चीज घटना चाहिए। सो दैट मीन्स प्रेशर इंक्रीजेस एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा होगा क्या, यहां से स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर लो होगा या प्रेशर एनर्जी कम होगी, यहां से स्पीड कम है तो प्रेशर हाई होगा। सो इससे क्या होगा बेटा, जब नीचे से प्रेशर हाई है ऊपर से कम है, एज ए रिजल्ट ये इसको बूस्ट करेगा, इट विल लिफ्ट द एयरफॉइल अपवर्ड्स। एंड देयर इज वन मोर एग्जाम्पल, लिफ्टिंग ऑफ दिस रूफ। आप रूफ में क्या देखते हो बेटा, नीचे से जो ऊपर से जो फ्लूइड आता है, एयर आता है, उसकी वेलोसिटी हाई होती है तो प्रेशर लो होता है, नीचे से जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है, प्रेशर हाई होता है, उससे क्या होता है, सो दीज आर द वेरियस। देयर इज वन मोर मैग्नस इफेक्ट, एक साइड से आप फिनिश रखते हो, दूसरे साइड से रफ सरफेस है, जो ही बॉल आती है एक साइड से प्रेशर कम है दूसरे से ज्यादा है तो बॉल स्विंग हो जाती है। सो बेसिकली बेटा आज टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, यहां पे कुछ तैयारी चल रही है, स्टूडियोज में बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाली है, तो उसकी वजह से आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, कंटिन्यू विद द